Jai Hind student. In the last video part 1, we have discussed about the buccal cavity. In the second part 2, we discussed about oesophagus. And in this video, we will learn about the function of stomach, its physiology, what are the excretions, what is the basic structure inside the stomach. So, in this slide, you can see that in the last video we had discussed about this paragraph, especially this paragraph. Now, in this video, we will discuss about this paragraph. Now, I am going to read this paragraph. These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. Now I am going to repeat this line, taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. Now see, this is gastric glands. Now the question comes, where is the gastric glands located? What are its location, where it is, and what are the basic functions of the gastric glands? And in the wall of the gastric gland. Today we will see that where is the wall inside the stomach and what are the secretions of the gastric glands, what are the cells inside that. We will see it in a brief. These release hydrochloric acid, protein digestive enzymes called pepsin and mucus. Now we will see that in the wall of the gastric glands, which cells are responsible to release the hydrochloric acid, protein digestive enzymes, pepsin, mucus, and all other things. Now, these are the reading topic of today. We are going to make it clear by the visual images as well as few animations. Now, this is the second image. This is taken from the class 7 book. In this book also, we had already read about the digestive system in brief. But now, in this class, in class 10, we will go through little step ahead. Now, see what is the next. This is the next paragraph. This is also taken from class 7 book. Just I used to take these things because I want to compare it. That whatever you have read, that should be recalled. Therefore, in this paragraph, the stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened U shape and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at other end. So, we are going to delve more. We are going to discuss more about the stomach. Now, come to the stomach. This is the stomach. Now, we will first understand what is the stomach and how many regions are there in the stomach for better understanding of their functions. Now, according to the book, the region of the stomach is 4. There are 4 regions in the stomach. पहला रीजन है कार्डिया. ये पहला पार्ट है स्टोमैक का जो एसोफेगस के नीचे रहता है. एसोफेगस और कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे ओइसोफेगस. एक्चुअली ये अमेरिकन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का हेरफेर है. ओइसोफेगस अमेरिकन है और एसोफेगस जो है वो ब्रिटिश है. तो देर इज नो एनी प्रॉब्लम्स कि आप एसोफेगस बोल रहे हो या ओइसोफेगस बोल रहे हो. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज द सेकेंड. कार्डिया रीजन हो गया फर्स्ट रीजन. देयर इज द सेकेंड रीजन. दिस इज कॉल्ड फंडस. फंडस रीजन इज द राउंड शेप. हम लोग दिखाएंगे, आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी मैं उसको पिक्चर के जरिए क्लियर करूंगा कि ये क्या है. पहला आपको ये समझना है कि कार्डिया रीजन एसोफेगस के साथ रिलेटेड है. फंडिक रीजन उसके बाद होगा जो राउंड शेप होगा, डोम शेप होगा. इसके बाद का जो बॉडी होगा वो लार्जेस्ट एरिया होगा. दैट इज द लार्जेस्ट मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक वेयर द चर्निंग और जो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो खास इस जगह पे दिखेगा. लास्ट जो एरिया होगा वो होगा एंट्रम का, जिसको पाइलोरिक एंट्रम भी कहेंगे, जहां से ये स्टोमैक से बाहर चला जाएगा ड्यूरिनम के पार. तो आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड क्लियरली अबाउट द कार्डिया, fundus, body and pyloric antrum.
Now see this picture. That picture will make you clear. Now see this picture. This is the diagram of stomach. Now see, this is the yellow color आप पोर्शन जो देख रहे हो, यही है एसोफेगस का, जिसमें हमने पार्ट 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एसोफेगस से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ने हैं और कितनी जानकारी आपको रखनी है. Now see, this is the area. This is called cardia region. This is cardiac nodes. तो ये कार्डियक रीजन हो गया. ओके, ये कार्डिया रीजन हो गया. तो हमने कहा था ना, वो एसोफेगस से जो पहला रीजन पड़ेगा दैट इज कॉल्ड कार्डियक रीजन. नाउ दिस इज द रीजन, डोम शेप्ड रीजन जो है, ये रीजन थोड़ा उभार करके है. दिस इज कॉल्ड फंडस रीजन. बॉडी आपको बताया था सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा, आप देख सकते हो. दिस इज द बॉडी, दिस इज द मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक. Now the end part of the stomach, that is fourth part of the stomach, is the pyloric antrum or antrum. ये ultimately it opens into the duodenum. ये कहाँ खुलता है? डिओडिनम में खुल रहा है. तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एसोफेगस से एक सिस्टमैटिक ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने देखे हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में कि ये फंडस, बॉडी, पायरोलिक और कार्डिया, ये चारों पार्ट को अगर हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से ना लिख करके कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, तो ये अरेंज करने दिया जाता है. तो बी वेरी केयरफुल दैट cardia is the first, fundac is the second, body is the third, and pyloric antrum is the next region. तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया. नाउ ये जो रीजन है, अब मैं आपको एक एनिमेशन पिक्चर के जरिए इसको क्लियर करूंगा. नाउ सी, दिस इज द एसोफेगस. आप तो समझ गए होंगे. वंस अगेन, ये कार्डियक रीजन है. बिल्कुल आपका स्टोमक जे शेप का दिख रहा है ना, जे शेप का स्टोमक है. और ये स्टोमक का जो रीजन है, ये फंडक रीजन है. और इसके बाद का जो रीजन है, ये बॉडी है. यहां पर हम कराएंगे मैकेनिकल डाइजेशन. बहुत सारे पोर्शंस जो है, काइम, CHYME, जो एसिड मिक्स्ड फूड है, यहां पर चर्न होगा, यहां पर उसका मैस्टिकेशन होगा कंप्लीट. ये मैस्टिकेट करेगा, आप दांत नहीं ना इसके पास, तो ये अपने मसल्स के द्वारा इसको मैस्टिकेट करेंगे, इसको लुब्रिकेट करेंगे, इसको बिल्कुल डाइजेस्टिव लेवल पे ले जाएंगे और अल्टीमेटली ये फिर इसको भेज देंगे, पाइलोरिक रीजन को भेज देंगे. और पाइलोरिक रीजन जो है डिओडिनम से क्रॉस करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजेगा. तो ये क्या होता है और कैसे होता है, जरा इस पे विचार करते हैं हम लोग. नाउ सी, दिस इज द स्टोमक. अब हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं कि इसके अंदर आपने अभी देखा एनसीईआरटी के बुक में गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे तभी गैस्ट्रिक जूस निकलेगा. तो आज हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्चुअली कहाँ छिपे हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनिमेशन पिक्चर के जरिए इसको देखते हैं. नाउ अब आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टोमक. दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक फोल्ड्स, गैस्ट्रिक पीट्स हैं, और ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं तो देखिए आपको यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस बनेंगे, HCl बनेंगे, इंजाइम्स भी निकलेंगे. तो दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब हम आपको क्लियर करते हैं कि इस एरिया में कितने सेल्स हैं. एक एरियाज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं. ये देखिए, इस कलर के सेल्स को हम कहते हैं सरफेस म्यूकस सेल्स. ये सिक्रीट करेंगे अल्कलाइन फ्लूइड और वो हेल्प करेंगे, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग. तो इट मींस दैट दिस इज द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स. Now this is pink color cell is called mucus neck cells. It secretes acidic mucin. So very important part is the mucus. Now this is very important. This is called the parietal cells. This parietal cells produces hydrochloric acid as well as इंट्रिंसिक फैक्टर. आप देख सकते हो इंट्रिंसिक फैक्टर किस तरह से विटामिन B12 से रिएक्ट कर रहा है. क्यों कर रहा है अभी मैं आपको उसको क्लियर करता हूं. और देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन यूनाइट होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, पीएच लेवल को लो करेगा. दिस इज द parietal cells, that is also called the oxyntic cells. Okay, now you can understood that from where the hydrochloric acid is being secreted. It is secreted from the parietal cells. And what is the region where it is situated? आप देख सकते हो ये कलर मैंने कहां से उठाया, इस जगह से उठाया. ठीक है, इस जगह के एरियाज को हमने कहा है parietal cells. देखो parietal cells कहां है. You can observe that parietal cells are there in between the mucus neck cells. Now this is the chief cell. अब ये chief cells जो है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीप सेल्स पैराइटल सेल्स के बाद हम पढ़ रहे हैं। इसका कलर से आप आइडेंटिफाई करो कि ये कलर जो है चीप सेल्स का कहां पर है। और ये चीप सेल्स जो है दिस प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजेन, दिस प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजेन एज वेल एज गैस्ट्रिक लाइपेज। हम सब कुछ एनिमेशन के जरिए आपको बताएंगे कि पेप्सिनोजेन का HCl से क्या रिलेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है उसका पेप्सिनोजेन से क्या रिलेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से गैस्ट्रिक लाइपेज, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सब कैसे बदलते हैं। अल्टीमेटली देयर इज अ जी सेल, आप देख सकते हो जी सेल, छोटे छोटे सेल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा है। देखो जी सेल्स इस एरिया में नहीं दिखाए गए, जी सेल सबसे नीचे वाले एरिया में दिख रहा है। और ये जी सेल है दैट रिलीजेस गैस्ट्रीन, ये एक हार्मोन है दैट रिलीज गैस्ट्रीन। अभी आपने हार्मोन चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट इस रीजन पे आप जान लो कि एक हार्मोन है गैस्ट्रीन। मैं अब यहाँ की कहानी को बिल्कुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लियरली, आप समझ लो कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, किस तरह से स्टोमैक जो है गैस्ट्रीन रिलीज करता है, किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ मेक्स द pepsinogen reactive. Pepsinogen, gen means where is the no reaction, it is called a gen. If there is the reaction तो gen word यहाँ से नहीं रहेगा। Okay, now see this is there are the 5 different types of cells: surface mucous cells, mucous neck cells, parietal cells, cheap cells and G cells। तो आपको ये सारे सेल्स बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। एंड वेयर इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्टोमैक लाइनिंग रुगे। ओके, ये एरिया को हम कहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में क्या बताया जा रहा है, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से गैस्ट्रिक फोल्ड्स के अंदर जो है ये गैस्ट्रिक पीट्स हैं। ओके, नाउ अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिखाएगा, हाँ एक बात यू शुड see here, that is visit my blog, means I have also made my personal blog to make you clear about the concept of biology with a complete diagram. Also there is a video is also uploaded. These all things you can see in one blog. You cannot, need not to search in the, that is in the YouTube. Okay, sometimes it becomes very difficult to find out the films or videos because there are lots of videos. So some useful videos I have already uploaded in my BSc, that is my CBSE biology.blogspot.com. Just go to that my site and where you can find everything. Okay, now come to the physiology of stomach. फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक में बेसिकली मैं ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स को जी सेल, ये कलर को पैराइटल सेल एंड दिस इज कॉल्ड द चीप सेल, ये तीनों कलर के एक फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी है, आपको ये जान के बड़ा अच्छा होगा क्योंकि यू हैव आल्सो द स्टोमक एंड हाउ द स्टोमक एक्चुअली वर्क्स यू शुड नो। कोई भी लेमैन इसको आसानी से समझ सकता है। देखिए जब आपका स्टोमक एम्प्टी रहेगा तो देयर इज नो स्ट्रेचिंग। when your stomach is empty there is no stretching, it means all the cells are taking rest, कहीं कोई reactions नहीं है। but suppose that कि if the food is getting inside the stomach, अगर फूड जो है आपके इसोफेगस से इस एरियाज में आ रहे हैं, then the food will make the stomach lining stretch. Okay, this food stomach lining will stretch, then there the muscular area of the stomach will get stretched. As the result, when the stretching takes place, then what happens, this G cell start its first reaction. ये G cell सबसे पहला reaction करेगा। कैसे reaction करेगा? G cell will release gastrin hormone. This is the gastrin hormone and this G cell will release that hormone. Okay, this is the G cell. That first G cell will release the gastric hormone. Okay, now come to the reactions of the gastric hormone. Now what happens, this is the parietal cell, ये आपको देख रहे हैं रेड कलर के parietal cells है। This is also called the oxyntic cell, correct, this is also called the oxyntic cell. Now this parietal cell will be activated because the gastrin hormone has already released in the stomach, and this parietal cell will getting activated, and as a result hydrochloric acid will fall down from this area into the body of the stomach. इस एरिया से फंडिक रीजन से
इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगेंगे एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड drop by drop it falls inside the stomach and finally the pH of hydrochloric acid comes up to 1.2 or below that. तो जितना लो pH होगा, याद करो, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड ये माना जाएगा, हाईली कोरोसिव, highly dangerous acid inside our stomach. Now this HCl that is being released by these parietal cells, which is being activated by the gastrin and which is released from the G cell and is being activated by the stretching, and stretching is done by you only. देखिए, आप खाना खाएंगे, स्ट्रेचिंग होगा, गैस्ट्रिक जी सेल एक्टिवेट होंगे, गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन जाकर के ये पेराइटल सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, HCl निकलेगा और HCl जब निकलेगा तो अल्टीमेटली HCl विल वर्क इन अ डिफरेंट वे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल्स आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड चीफ सेल. This is called chief cell. Now this chief cell is being activated by the hydrochloric acid and now this chief cell having pepsinogen hormone, ये सॉरी एंजाइम्स, ये पेप्सिनोजेन एंजाइम्स हैं. ये जेन लिखने का मतलब हो गया कि दिस इज इन इनएक्टिव फॉर्म, सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव. अभी मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरह से HCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे कैसे इन सब को उठाते हैं, जगाते हैं कि आप रिएक्ट करो, आपको काम स्टार्ट होना चाहिए. तो ये पेप्सिनोजेन हार्मोन विल टर्न इनटू द पेप्सिन. सी हियर, दिस इज पेप्सिनोजेन हार्मोन that reacts with the HCl and it turns into the pepsin and ultimately आपने सोयाबीन खा रखा है, ultimately आपने मीट खा रखा है. This pepsin will break down the proteins into the amino acids and ultimately this amino acids goes inside the stomach, outside the stomach, in the small intestine and where it is absorbed. ओके तो आपने देखा कि किस तरह से जी सेल, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स, और किस तरह से एक अगर ये स्ट्रेच नहीं होगा, गैस्ट्रिन नहीं निकलेगा तो HCl नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा तो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट नहीं, पेप्सिन नहीं हुआ और इस तरह से पेप्सिन रिएक्ट नहीं करेगा प्रोटीन से, आपका जो खाना वो पचेगा नहीं. ओके तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या दिखता है. नाउ अब देखो एक रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, लाइपेज, ये सब के अंदर, पेट के अंदर क्या चल रहा है वो आपको दिखेगा. सी इनसाइड द स्टोमैक, आई हैव एंटर्ड इनसाइड द स्टोमैक, लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर. सी इनसाइड द बैक्टीरियाज, आई विल कैच वन बैक्टीरिया, दिस इज वन deadly bacteria inside the stomach and ultimately some small globules of green colored hydrochloric acid will attach with it and this bacteria will blast. So blast हो गया, ये खत्म हो गया बैक्टीरिया. This is the first role of hydrochloric acid to damage the bacteria. Now the second role of the hydrochloric acid is pepsinogen. It will make it again green color hydrochloric comes and it activates pepsinogen to help the digestion in protein. प्रोटीन का डाइजेशन में इसने मदद किया. देखिए प्रोटीन आएंगे और इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होगा. पेप्सिनोजेन जब तक रिएक्ट नहीं करेगा, पेप्सिन में नहीं बदलेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा. आगे देखते हैं, आगे अब HCl क्या क्या करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब आगे देखिए क्या हो रहा है. सी दिस इज विटामिन B12. ये विटामिन B12 के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं बट इट शुड गेट एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन until unless the intrinsic factor will come. See, the intrinsic factor is going to attach with the vitamin B12 and ultimately this will get inside the that small intestine where it is easily absorbed. देख लिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है स्टमक के अंदर हमारा रन कर रहा है और आपको पता भी नहीं है. आइए अब ये देखिए, फैटी मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, 3 ग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल हैं एंड लाइपेज एंजाइम विल कम एंड इट विल ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड. चलिए आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एंजाइम आप इस बॉन्ड को तोड़िए. ये देखो बॉन्ड टूट गया. नाउ वन मॉलिक्यूल इज गेटिंग फ्री. ये देखो आपका मॉलिक्यूल्स फ्री हो गया एंड नाउ इट इज फ्री फैटी एसिड. अब हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब करा सकते हैं. वाओ क्या फंक्शन है, हमारे स्टोमैक के अंदर चल रहा है. सी द स्टोमैक लाइनिंग इनसाइड. अब हम इसके अंदर चले गए हैं. चलिए आप फंक्शन दिखाइए कैसे आप चर्निंग मूवमेंट करते हैं. सी दिस इज द मस्कुलर मूवमेंट इनसाइड एंड दिस इज कॉल्ड काइम. ये मांस देखो कितना गीला और मोटा होते चला जा रहा है बिकॉज नाउ इट विल कम आउटसाइड फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट पाइलोरिक एंट्रम्स. एंट्रम से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में प्रवेश करेगा. नाउ इट विल कम सून. चलिए आप आ जाइए जल्दी से स्टोमैक के इस लाइनिंग में. देखिए आने लगा ये और आ करके ये अब जो है पाइलोरिक स्प्रिंटम से
डियोडेनम में प्रवेश करने जा रहा है। स्टॉप यार, हो गया बहुत कुछ। अब इतना तो हम लोग देख लिया कि किस तरह से स्टोमैक जो है वो फंक्शन करता है। तो अब हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाई म्यूकस इज इंपॉर्टेंट इज द स्टोमैक, क्योंकि म्यूकस अगर नहीं होगा तो क्या हमारा स्टोमैक का HCl कोरोसिव एक्शन का है वो क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा? It will damage the internal lining of the that is a stomach. So mucus lining is very very important, otherwise अल्सर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो म्यूकस कहाँ से निकलता है? म्यूकस से निकलता है। ओके, अब तक हमने इतना पढ़ा। आगे के वीडियो में वी विल सी द रोल ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जय हिंद, थैंक यू।